اور آپ کا آج بہت پیارا عنوان بن سکتا ہے۔ ایک آدمی بازار میں برف کی سلی لیے کھڑا ہے اور اس کو شام ہونے سے پہلے فروخت کرنا ہے، اور وہ آدمی اسی برف کی سلی کو بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اب برف ایک ایسی چیز ہے، اگر وقت پہ اس کا استعمال نہ ہو تو وہ بالیقین پانی کی شکل اختیار کر کے جو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہمارے لیے بن سکتی تھی، وہ کیچڑ بن کر لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہے۔ جب وہ برف فروخت کرنے والا مارکیٹ میں سلی لے کر اترتا ہے تو ایک آواز ضرور لگاتا ہے کہ وقت سے پہلے اس برف کو خرید لو، کہیں یہ اپنی اصل شکل سے نکلنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی ہے۔ برف بیچنے والا اتنی گہری بات یہاں بول رہا ہے، اگر کوئی یہاں پر کچھ ہی دیر کے لیے رک جائے اور سمجھ جائے کہ اس برف بیچنے والے نے ہم کو کیا کہا ہے، بالیقین ہمیں خدا یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ وہ برف کا نہ بھی بکنا ہو تو بھی بالیقین وہ برف والے کے لیے خسارہ ہے، اور وہ برف کا نہ بکنا بھی لوگوں کے لیے خسارہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ فرمایا کہ دیکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر میں اور آپ آج جس گھر میں موجود ہیں، عبد الرحمن بھائی کا جو گھر آج عالی شان بنا ہوا ہے، نذیر بھائی کا جو گھر عالی شان بنا ہوا ہے، اس گھر میں اگر آپ کو یہ بولا جائے آج سے 100 یا 50 سال کے بعد اس گھر میں اجنبی لوگ آ کر رہیں گے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ بالیقین کہیں گے کیسا آ سکتے ہیں بھائی، ہمارا گھر ہے، فلاں ہے، یہ انداز آپ کا ہوگا۔ میں سچائی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، میں مکمل عہد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ گھر جو آج عالی شان پیمانے پر بنا ہوا ہے، آج سے 100 سال پہلے ایسے لوگ رہتے تھے جن کو آج آپ نہیں جانتے شکل سے، اور انشاءاللہ آنے والے 200 سال یا صرف 100 سال میں ایسے لوگ آ کر آپ کے گھر میں رہیں گے جو آپ کو نہیں پہچانیں گے شکل و صورت کے اعتبار سے۔ بزرگان دین، یہ دنیا کا کھیل ہے، یہ دنیا کا تماشا ہے، یہ دنیا چمک دھمک رنگیلی بھری چیز ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا اگر مجھے دنیا سے سچی اگر اتنی محبت ہوتی تو یہاں کے ایک ایک کافر کو میں ایک ایک گھونٹ کے لیے ترساتا۔ اب دیکھو قیامت میں ہمت ہے کسی کی ہم جنت میں جا سکیں؟ قیامت میں ہے کسی میں ہمت کہ وہاں کوئی کافر جنت میں جا سکے؟ کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ اور جنت کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے، اور جنت ایک ہائی لیول کی چیز ہے، وہاں سب داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہ دنیا ہے، میں سب کو ڈھیل دیا ہوا ہوں، سب کو چھوڑ دیا ہوا ہوں، جاؤ جس کو جو کرنا ہے کرو۔ وہی پرانی بات اللہ نے فری ول دے کر رکھ دیا ہے، جاؤ جس کو جو کرنا ہے کرو۔ ایک دن آئے گا ریزلٹ ڈے، اس دن میں تم کو بتاؤں گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا 10th کا جب ایگزام لیتی ہے تو چند مخصوص لوگوں کو ہی اس کے آنسرز معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو خدا کا کرم فضل ہوا، اللہ نے قبر میں اترنے کے بعد کے سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات بھی ہمارے سامنے رکھ دیے۔ تمہیں من ربک کا پوچھا جائے گا،
تو اس کے جواب میں ربی اللہ کہنا ہے. بس یہ ربی اللہ، نبی اللہ اور دین الاسلام، یہ جو 3 آنسر ہیں جواب، یہ اس وقت نکلیں گے جب ہماری زندگی مکمل خدا کی تابعداری، رسول کی اطاعت شعاری میں گزرے گی. یہ زندگی کا مقصد ہے میرے بھائیوں. آج ہم جو خار ہوئے ہیں، علامہ اقبال نے بڑا بہترین جملہ کہا تھا، وہ معزز سے مسلمان، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تاریک قرآن مطلب قرآن کو چھوڑ کر، یا انہوں نے صرف قرآن کو چھوڑنے کی بات نہیں کی، تاریک قرآن ہوئے، تاریک السنہ ہوئے، تاریک العلماء، اور اسی طریقے سے وہ سارے اچھے کام جو دنیا میں نبی نے ہم کو بتائے تھے سب کو چھوڑ دیا، اور سب کے باوجود ہم نے ان سب کو اپلائی کر لیا اپنی زندگی میں، جو اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن نے معاشرے کو بتایا اور اس کے اوپر ہماری زندگی لگ گئی. بزرگان دین، دنیا بنانے والا خود یہ الفاظ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پیارے بندو، یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے، یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے. یہ دنیا، یہ اہل دنیا، یہ کچھ کام کے نہیں ہیں. تمہیں تمہارے رسول، تمہارے اللہ، تمہارے درمیان میں رکھی گئی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہی ہے جو تمہیں کل قیامت میں کامیاب بنا سکتی ہے. بزرگان دین، یہی شعر کو آپ پھر پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے میچ کر کر کہ یہ دنیا برف کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے، اور آج ہمارا مسلمان 2026 کے نعرے لگا کر نیو ایئر مناتا ہے. آج کا ہمارا مسلمان نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کہہ کر اپنی ذات میں فخر کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، ماؤں، بہنوں، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، زندگی کی ایک اینٹ گر گئی. نبی نے فرمایا کہ دیکھو ہر منٹ تم قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہو. صحابہ کو فرما رہی، ہر لمحہ تم قبر کے قریب ہوتے جا رہی، ہر منٹ تم اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتے جا رہی، ہر لحظہ تم اللہ کے لیے بہت قریب ہوتے جا رہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ کیا رولز ہے؟ مہمان بن کر میزبان، یا پھر مہمان اگر کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے. ہاں جاتے ہیں آج معاشرے میں، انہوں کیا لائے تھے؟ کچھ بھی نہیں لینا، انہوں ہم کہیں کو لے کے جانا، یہ الگ میٹر ہے. اصل جو مہمان، خاندانی مہمان، نسلی مہمان جب ہوتا ہے، اپنے لیے تو چھوڑ دو، اس گھر میں ان لوگوں کے لیے بھی لے جاتا ہے جن سے اس کا پردہ ہوتا ہے، جن کی ان کے رشتہ داریوں کے درمیان دور دور کے فاصلے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے اپنا دسترخوان سجاتا ہے. یہ مہمان کا اعزاز، یہ مہمان کا اسٹائل ہے جو میزبان، جس کی میزبانی، جس کی مہمانی کرنے والا ہے، وہاں جب جائے گا تو بالیقین اس کے گھر پھول لے جائے گا، اس کے گھر کھلونے لے جائے گا، فروٹ لے جائے گا. یہ اصول ہے دنیا کا. مگر یاد رکھو، وہ اللہ کے پاس جب ہم جا رہے ہیں تو یقین مانو میرے بھائیوں، اگر اللہ کے سامنے خالی ہاتھ اگر رہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ کل قیامت میں اللہ کہے گے، بندے بتاؤ تو صحیح کیا لائے ہو؟ اس وقت تم یہ کہو گے، میں یہ کہوں گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کچھ نہیں لا سکا. کیا کریں گے اس وقت میں؟ یہ کہیں گے کہ 31 میں نے ہیپی نیو ایئر کہا، اس کا کچھ اجر مل سکتا اللہ مجھے؟ جنوری کی پہلی مبارک بادی دی تھی میں، کچھ میرے لیے حصہ تو نے رکھا ہے جنت میں، جنت الفردوس میں؟ اللہ کہیں گے یہ سب تو ٹھیک تھا، مگر تو نے سال کے آغاز میں کچھ رولز بنائے زندگی کے، سال کے آغاز میں تو نے کچھ اپنی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے قدم اٹھایا تھا.
क्या तूने अपनी जिंदगी के कई साल गुजर गए, तूने मेरे से माफी भी मांग ली, मैं माफ भी कर दिया था, मगर आने वाले सालों के लिए तूने क्या शेड्यूल तैयार किया था वो बता। हमारे मुसलमानों के अंदर, इवन सबके अंदर ये जज्बा, ये हिम्मत, ये शौक, ये तड़प उड़न फिक्र होती है। साल का जब आगाज रहता है तो सारे लोग तहिया करते हैं, इरादा करते हैं और अज़म करते हैं, एक तरह की जिंदगी के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं। फुला करेंगे, ऐसे अपने आप को सजाएंगे, ऐसे महान बनेंगे, आने वाला साल ये 26 हमारे लिए फख्र का बाइस बनेगा। मगर याद रखें मेरे भाइयों, ऐसे नौजवानों को मेरा सलाम है, मगर याद रहे ये जो तुम आज़म कर रहे हो, चाहो तुम बंद कमरे में करो, चाहे तुम पब्लिकली कर लो, चाहे तुम जिधर करना है करो, मगर याद रखो शैतान खुला दुश्मन है तुम्हारा। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमा रही है, ये नबी की बात भी नहीं कर रहा हूं, ये खुदा खुद फरमा रहा है, मेरे प्यारे बंदो शैतान खुला दुश्मन है। उसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें अल्लाह की इताअत को मजबूती से पकड़ना हो, अल्लाह के अहकाम को पावर से पकड़ना होगा, ऐसा अज़म करना होगा जिस अज़म के सामने बड़े बड़े पहाड़ टल जाए, मगर तुम्हारा 2026 में किए गए अहद, पैमान और तुम्हारे आगे के गोल्स नहीं टूटने चाहिए। यह है तुम्हारा और हमारा जज्बा, ये है मेरे और आपका पावर, जो इस्लामी पावर है। और यकीन मानो मेरे भाइयों, मैं हदीस से कनेक्ट कर कर बता रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा अल्लाह की तरफ चल कर जाता है, अल्लाह दौड़ कर आता है उसके पास। अब बताओ, ये चल कर जाना अगर पक्का अज़म हो, अगर पक्का इरादा हो, अगर कॉन्फिडेंस से तुम चलने का इरादा करे हो या मैं चलने का इरादा करा हो, तो याद रखना अल्लाह फरमाएगा अब नहीं शैतान तुम्हारा दुश्मन है, अब अल्लाह कहेगा बस तूने पक्का इरादा किया था, इसीलिए शैतान से भी तुझको मैं खुलासी दे दिया, अब बस सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता जा, बस पीछे पलटने की जरूरत नहीं है। अब तेरी जिंदगी वहीं रुकेगी जहां मलकुल मौत हाजिरी देंगे। मेरे भाइयों, ये जिंदगी की इतनी नूरानियत वाला अल्लाह ने जिंदगी को इम्तिहान हाल जरूर बनाया है, मगर ये हरगिज नहीं कहा है ऐश और इशरत की जिंदगी नहीं जीना। ये नहीं कहा है अल्लाह ने कि तुम बड़े बड़े कारों में नहीं घूमना, ये अल्लाह ने हरगिज नहीं कहा है बड़े बंगले नहीं बनाना, अल्लाह ने ये हरगिज नहीं कहा है तुम ऐश की जिंदगी के 4 लुक़मे ज्यादा खा, बल्कि अल्लाह इन सब के साथ ये कहता है वो बड़ा बंगला हलाल हो, वो बड़ी कार हलाल हो, वो बड़े कारोबार डुबाए हुए ना हो, वो लैंडमार्क वो किसी बहन के हक को छीने हुए नहीं हो, और इसी तरीके से वो सारे काम जिसमें अल्लाह नहीं खुश होते हैं वो काम ना हो, उसके बाद जो करना है करो। यह है इस्लाम। ये गलत हमारे जहन में है, बड़े बंगले में नहीं रहना शायद, नहीं रहना चाहिए, बिल्यकीन आलीशान घर होने चाहिए, आलीशान गाड़ियां होनी चाहिए, आलीशान सवारियां होनी चाहिए, आलीशान हमारे दस्तरखान होने चाहिए, मगर वो दस्तरखान हलाल होने चाहिए, वो दस्तरखान के अंदर पावर होना चाहिए। अल्लाह यही फरमाता है। फिर चलते हैं हम उसी शेर की तरफ, मिस्ल बर्फ ये दुनिया कम होती जा रही है, एक ईंट गिर गई इंसान की जिंदगी से, मगर इंसान कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर। मेरे भाई कह तो दिए ठीक है, मगर सोचो कि तुमने पास्ट में क्या किया था। क्या मेरी जिंदगी खुदा की नाफरमानी में गुजरी? इंशाअल्लाह अब नहीं गुजरेगी, ये अहद करके उठना होगा। गुज़िश्ता मैंने इतना प्रॉफिट लिया था, अब आने वाले जमाने में मैं करोड़ों के प्रॉफिट के साथ अपने मुआशरे का एक सही जवान बनकर साबित होऊंगा। गुज़िश्ता की जिंदगी में मैंने कई बदनजरियां की, कई माँ बाप को सताए, कई अपनी जिंदगी के अंदर गुलछर्रे उड़ाए,
मगर नहीं, अब नहीं, अब मैं अपने अल्लाह के सामने और दुनिया में बसने वाली हर माँ का बेटा बनकर साबित रहूंगा, हर बहन का भाई बनकर साबित रहूंगा, हर उस बुरे काम का खात्मा बनकर साबित रहूंगा जिसके जरिए से दुनिया बुराई के दलदल में जा रही है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये आजम, ये पक्का इरादा अभी हमने, मैं और हमारी मुकम्मल टीम, एक कितना प्यारा हम लोगों ने इस 2025 के अंदर जब हमने एक इरादा किया, उस इरादे का नाम था माओ जो हमारी ओल्ड एज होम में बैठी हुई है, चाहे वो अपनी माँ हो, मुसलमान हो या गैर हो, स्कूल कॉलेजेस के अंदर बयानात के लिए जाकर वहां के प्रिंसिपलों के सामने ये बात रखकर स्कूल कॉलेजों के अंदर ये रखें कि यहां पर जितने वो बच्चे जो मैच्योर हैं, अपने माँ बाप की नाकदरी करते हैं या अपने माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं या फिर उनके साथ जुबान लड़ाते हैं या उनको तकलीफ पे तकलीफ देते हैं, ऐसे बच्चों की एक टीम बनाओ, ऐसी बच्चियों की एक टीम बनाओ और 4-5 स्कूल के टीचर्स का पूरा अमला तैयार करके इन्हें महीने में एक मर्तबा हैदराबाद के बड़े बड़े ओल्ड एज होम में इनको ले जाओ और उन माओं के सामने अपना दर्द सुनाने के लिए बिठाओ। यकीन मानो मेरे भाइयों, कई लोगों ने इसको कबूल किया। मैं खुश हुआ इस बात पर कि अल्लाह ने ये मुख्तसर सा काम इतना बड़ा बेहतरीन अंदाज में ले लिया कि अल्लाह के फजल एहसान से जब ये चीज देखते हैं तो उनके दर्द, उनके अंदर फिक्र पैदा होती है कि अभी हमारी माँ जिंदा है। किसी की माँ अगर दुनिया से गई हुई है तो उन्हें अफसोस होगा कि मैं अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सका। जिनकी माँ जिंदा है अपने घरों के अंदर, उनके अंदर शौक बढ़ेगा कि आज मेरी माँ जिंदा है, मैं उसके पैरों में झुक जाऊं। ये अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारा माशरा ये तय ही नहीं कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरा शेड्यूल क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं या मैं क्या करना चाहूंगा। ये हमारे जहनों से क्यों उछल हो रहा है? क्यों हम बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर अल्लाह ने 24 घंटे अगर दिए हैं, 12 घंटे तक तो सूरज हमारे सामने होता है। अल्लाह ने दिन को कमाने का जरिया बनाया, खूब कमाए हलाल। रात अल्लाह सोने की बनाई है और हम उस रात में सो जाएं और ये तहैया करें कि आज के बाद से मेरी रात की नींद 11 से पहले मैं बिस्तर पर चले जाऊंगा और मैं फजर की नमाज से पहले उठूंगा और मेरे जिंदगी का वर्कआउट करूंगा। तहैया और मजबूती के साथ मैं फजर की नमाज में शरीक रहूंगा और कई नौजवानों को मैं शरीक करूंगा। उसके बाद मैं जिंदगी के रोजी रोटी की तलाश में अल्लाह के फजल के साथ बाहर निकलूंगा और घर में बैठी मेरी माँ, मेरा बाप, उनके पास मैं हलाल रिस्क पहुंचाऊंगा। ये इरादे करने का मोमेंट होता है। ये नहीं है मुसलमान किसी रंगारंगी से खुश नहीं होना चाहिए। मुसलमान किसी चमक धमक की लाइटों से अपने आप के दिल को कमजोर नहीं समझना है। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, एक अदना मोमिन के दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो वर्ड्स बैठे हुए हैं, दुनिया को अगर मुकम्मल एक तरफ रख दिया जाए, इस एक बंदे को एक तरफ रख दिया जाए तो अल्लाह के यहां ये बंदे का वजन भारी हो जाएगा। अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज मुझे और आपको दी है। अल्लाह ने इतना प्यारा मर्तबा मेरे और आपके लिए ठप्पा लगाया है। तो मेरे भाई, क्यों हम दूसरों से मुतासिर हो रही? क्यों हम दूसरों की माल और मता से अपनी जिंदगी को बैकआउट कर रही? क्यों हम अपनी जिंदगी को पीछे ले जा रही कि उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, उसके पास जो है वो है, आपके पास जो है वो है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस मकाम पे अल्लाह ने आपको रखा है, ऐसे मकाम पे आने के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं।
अल्लाह मुझे इस मकाम तक तो पहुंचा। किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास साइकिल नसीब नहीं है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास कार है, तो अल्लाह की इन प्यारी नेमतें जो अल्लाह ने पैर दिया है वो पैर से महरूम है। अल्लाह ने वो सब सारी सलाहियतें दी हैं तो अल्लाह ने उनके जुबान के मजे को खत्म किया है। अल्लाह ने किसी ना किसी चीज में किसी ना किसी बंदे को रखा है, मगर सब के लिए अल्लाह ने एक ही वर्ड को जारी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे ये दौलत से नवाजा। मेरे भाइयों, अज़म करो कि अभी भी हमारे पास बहुत सारा वक्त है। जो हमारे बच्चे खुसूसन नौजवान ये इरादा कर लें कि मैं अपनी जिंदगी को अब बेहतर बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग रील पर नहीं, अल्लाह के दिए हुए ट्रेंडिंग अवामिर पर चलाऊंगा। मैं अल्लाह के दिए हुए ऑफिशियल लॉ एंड ऑर्डर्स पे अपने आप को लाऊंगा। मैं अल्लाह के दिए हुए बेहतरीन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अपने आप को खपाऊंगा। ये अगर कोई तहिया करता है तो याद रखें मेरे भाइयों, हम क्या समझते हैं, अगर ये इरादा कर लिए आप 5 दिन फजर की नमाज को पाबंदी से आइए, आपको शैतान खुद उठाएगा कि भाई जा पहले नमाज के लिए। ये है, आदत होनी चाहिए। 5 दिन, 40 दिन की बात नहीं कर, 5 दिन उठिए बस सिर्फ। आप देखना, आप न चाहते हुए भी रात कितनी देर सो जाएं, अल्लाह आपको उस वक्त उठाकर ही रखेगा। क्यों? ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का एक तरह। अल्लाह ने खुद फरमाया, बंदा जब जो चीज चाहता है तो याद रखना मैं उसके लिए मुकम्मल तैयार हो जाता हूं। मैं अभी एक किताब में पढ़ रहा था, अल्लाह अगर किसी को फजर की नमाज की तौफीक नहीं मिल रही है तो याद रखना उसका मुकम्मल दिन कहीं ना कहीं अल्लाह को नाराज करने के लिए निकल गया है। कहीं ना कहीं रसूल के लिए वो बंदे ने कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाई है। मेरे भाइयों, सोचो कि मेरी फजर हो रही है या नहीं हो रही है। आपके लिए ये सर्दी वर्दी तो उन बच्चों की बात है। इस सर्दी में ठंडे पानी से वुजू नहीं करेंगे, सर्दी है हम फजर को नहीं जाएंगे। ये 2 कौड़ी की सर्दी हमको बताएगी कि हम फजर की नमाज में आए ना आए। ये हिम्मत करके आगे जाओ। आप ये बताओ, आपको मैं बताऊं, 2 लोग चाय पीने के लिए सर्दी जैसे मौसम में बड़े बड़े ढाबों की तरफ जाने के लिए तैयार, 5 मिनट के डिस्टेंस की मस्जिद को आने के लिए तैयार नहीं है, तो अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं है, ये अल्लाह के साथ मिसबिहेव नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, सर्दी का एक कतरा वुजू का तुम्हें जन्नत में आला मेयार पे पहुंचाने वाला है। तुम्हें सर्दी के एक कदम फजर के लिए उठाना, तुम्हें अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मोतियों के महल तैयार कर कर रखे। हां, दुनिया ना माने, मैं सच्चाई के साथ आपको कह रहा हूं, अगर आप इस बात को मुकम्मल अज़म से लेंगे तो बिल यकीन कल क़यामत में नबी के पास और अल्लाह के पास ये बात ले जाकर ठहरना कि अल्लाह मैंने तेरे रसूल की इताअत की थी, आज मुझे वो इनाम चाहिए जो तूने तेरे नबी को बताया था। मेरे अजीज दोस्तों, ये करने के काम है। आगे चलते हैं। एक राइटर हैं, अरेबिक राइटर, उन्होंने एक वर्ड लिखा है अल वक्तु असमन। यहां पर उन्होंने अपने कलम को रोक दिया। इसका मतलब है वक्त बहुत कीमती। किससे कीमती है उसका ऑपोजिट मामला जिक्र नहीं किया उसके बारे में। मसलन बशीर भाई नजीर भाई से बहुत खूबसूरत है, नजीर भैया है ना बशीर भाई के अपोजिट में। यहां राइटर ने अल वक्तु असमन ये जुमला लिखकर डाउट डालकर आगे चला गया, बस मेरे पास नहीं है इसके आगे जुमला लिखने के लिए। मगर बहुत सारों ने बाद में ये लिखा कि वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। किससे? सोने से ज्यादा कीमती। मेरे भाइयों, ये सोना भी छोटी चीज है वक्त के सामने। ये वक्त तलवार के मानिंद है, अगर तुम इसको नहीं काटोगे वो तुमको काटेगा, बिल यकीन हमारी जिंदगी को खत्म कर कर एक जगह रख देगा। इसीलिए आगे चलते हैं, हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की
क्या तदाबीर करना है वो मैं आपके सामने अब जिक्र करूंगा। वो ये है, नौजवान बच्चों से मेरी गुजारिश है कि नौजवान अपनी जवानी का मुकम्मल लिहाज रखें। नौजवान अपनी जिंदगी को मोबाइल से अब बाहर निकालें। नौजवान अपनी जिंदगी को अब ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म से बाहर लाएं। उसके बाद भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा समंदर है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ये पूरी दुनिया को अल्लाह ने मुयस्सर कर कर रख दिया है। आप अगर अपनी इंतहाई हमारा प्यारा वक्त, इंतहाई हसीन तरीन लम्हा अगर हमारी अय्याशियों में चला जाए तो याद रखना मुस्तकबिल हमारा नहीं संवर सकता है, मुस्तकबिल हमारा तैयार नहीं हो सकता है। मुस्तकबिल को तैयार करने के लिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जी जान लगा दें कि पढ़कर आप मुल्क का नाम रोशन करें इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से पेरेंट्स के लिए इंतहाई अहम जरूरी हिदायत ये हैं कि बच्चों के लिए आसानियां मुहैया करें और बच्चों की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अब मियां बीवी के दरमियान की जो लड़ाइयां हैं वो इन बच्चों के सामने ना डालें। हैदराबाद का जब सर्वे किया गया 82% नौजवान बच्चे जो माँ बाप के नाफरमान बने हैं वो महज माँ बाप की आपस की लड़ाई एंड मिस बिहेवियर की वजह से बच्चों ने अपने आप को तबाह कर लिया है। माँ बाप खुल के बात बच्चों से नहीं कर रही, उनसे एक लुकमा मुंह में नहीं डाल रही, हाथ से खाना खिलाओ क्या बड़ी बात है। बाप 50 साल के हैं, बेटा 20 साल का है, तो अपना वालिद खुद अपने बच्चे को हाथ से खाना नहीं खिला सकता? प्यार मोहब्बत क्यों नहीं बता रही? अगर मैं यहां पूछूं, नहीं पूछूंगा, यहां अगर मैं पूछूं कितने ऐसे मेरे प्यारे वालिदैन हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे को अपने हाथ से लुकमा खिलाकर अपने बच्चे को लुकमा बनाकर खिलाया, बहुत कम लोग होंगे, नहीं उठाएंगे हाथ। क्यों? शर्म आती है। यही बच्चे यही लुकमे को तरसने के लिए, यही बच्चे यही प्यार को तरसने के लिए, यही बच्चे यही प्यार को पाने के लिए किसी महबूबा की आगोश में चले जा रहे हैं, किसी महबूबा के सीट पर बैठे हुए हैं, किसी महबूबा को अपना सब कुछ मान बैठे हैं। वो हाथ से खिला भी रही है, वो हाथ से आंसू भी पोंछ रही है, वो उसको हक भी कर रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये वालिदैन का काम था, ये भाई बहनों का काम था। मुआशरे ने इसको तोड़ दिया। क्या हुआ? इसको दूसरे एंगल के लोगों ने लेना शुरू किया। बस अब उसको वो मोहब्बत प्यारी लगने लगी, अब उसको वो स्टाइल प्यारा लगने लगा। मेरे भाइयों, आखिर में गुजारिश यही है कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत, उन बच्चों के साथ सही मामला। अब देखें, अभी एक बहुत काफी दिनों से एक रील वायरल हो रही है, अफसोस हो रहा है, आप हैरान होंगे, क्योंकि मेरा मिजाज है, मैं ट्रेंडिंग उन्वानात आपके सामने पेश करने का मुझे बहुत जी चाहता है, इसलिए कि मैं मुकम्मल सोशल प्लेटफॉर्म को अपनी नजरों में रखा हुआ होता हूं कि क्या कर रही हमारे नौजवान, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था। ये कहां की मोहब्बत है मेरे भाइयों? ये 2026 कब शुरू हुआ तो लोग आपस में हाथ मिलाकर गरम गरम चाय उसके ऊपर डाल रही कि ये साबित करने के लिए कि हमारा अगर हाथ छूटा तो हमारी ये दोस्ती सच्ची नहीं है, अगर ये पक्के रहे तो हमारा 2026 सक्सेस हो जाएगा। किसने बताया? ये तुम अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रही? मैंने तो अफसोस के साथ यहां तक देखा कि तेल पेट्रोल डाला गया हाथ पर, उसके ऊपर आग लगाई गई। अरे मेरे भाइयों, वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, प्यारे नौजवानों, अल्लाह के नबी खुद कुरान फरमाता है अपनी जानों को हलाकत में मत डालो। ऐसा अगर तुम्हारे वालिदैन भी अगर कहेंगे तो मैं हराम कहूंगा ये करने के लिए। दोस्त तो फिर भी दूर की बात है, गर्लफ्रेंड तो उससे दूर की बात है। मेरे भाइयों समझो, ये नहीं करने के काम है। दोस्ती दिल से होती है, जुबान से नहीं। क्या तुमने दोस्ती का कॉन्सेप्ट अबू बकर का नहीं पढ़ा? 36 सुराखों को अपने जिस्म के कपड़े फाड़ के लगा दिया, एक सुराख बचता है, मेरा प्यारा नबी अबू बकर के मांडी पे सर रखता है,
تو اپنا ایک انگوٹھا اس سوراخ میں ڈالتا ہے اور نبی کو مکمل طریقے سے پروٹیکشن دیتا ہے. یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچی الفت، یہ ہے سچی مودت جو صحیح میں کرنے کی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں کو، ہمارے نوجوان آج کل کے ینگسٹرز کو بہترین اسلام کی تعلیمات کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے والدین ہمارے بچوں کے ساتھ الفت مودت کا معاملہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو بات کہی گئی ہے اللہ سب سے پہلے اس پہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں بھی محتاج ہوں، میں بھی عمل کر ہی رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے سب آپ کے لیے بول دیا، نہیں، اس کا میں بھی محتاج ہوں، میں بھی ان گناہوں میں ہوں. اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ ہم تمام کو بچائے اور ہم تمام کے لیے اللہ جنت آسان فرمائے. اور آخری وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو